अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फर्दर डिले, I would like to call Dr. Rakesh Kumar Singh sir, who will come here and present his ideas and thoughts related with the topic. Thank you so much. Thank you. Honorable Chief Guest and distinguished dignitaries, scholars, students, UG and PG, सर्वप्रथम मैं आपको नमस्कार करता हूं और इस सीट ऑफ लर्निंग के ऊपर खड़ा होकर के मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं उस ऑर्गेनाइज़र को जिन्होंने इस टॉपिक को चुना, इंडियन फिलॉसफिकल थिंकिंग, जिसकी आज आवश्यकता है। और एक अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मुझे तमाम वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ने का मौका मिला, एंड व्हाट आई गेन फ्रॉम T.S. Eliot, Foucault, other Marxist philosophers and thinkers who came in the period of colonial rule, and after that colonial rule, which kind of literatures were written and which kind of philosophies. Sir has quoted Clash of Civilization. ये हटिंगटन ने पहली बार एक आर्टिकल लिखा था, Clash of Civilization, and I came across that article. What I understand and what I feel, Huntington's article, I can think that Huntington is somewhat different from what the thinkers and what the idlers have commented upon the civilization. A new kind of thinking Huntington just developed in the Clash of Civilization. Civilization has not been the part of any kind of clash, either between armed forces or any kind of classes which may be having different kind of nature. I think civilization and culture both are the ways through which we can make our life better. Civilizational, in the time of colonial period, colonial powers occupied India. Which kind of clash of civilization? He wanted to impose Christianity upon Indian way of life, but could not have been successful. It may be a matter of discussion that they could not come here only to establish their civilizations. No, they could able to come here for the material gain. And the material gain and materialism that started with the Karl Marxian philosophy. When Karl Marx came, he talks about matter and materialism. And our thinkers are telling about Atma, soul. If you just compare and make the better comparison between Western thinkings and Indian thinkings, you can find a wide range of difference. Here, Ram and Bharat, they are clashing not for power. They are trying to liberate from the power. हमारे यहाँ पावर के लिए लड़ाई कभी नहीं हुई, और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में पावर के लिए ही लड़ाई हुई। राजा ने अपने लड़के को मार दिया, अपने सगे संबंधी को मार दिया। इस्लामिक सिविलाइजेशन में भी यही हुआ। पूरी हिस्ट्री उठाकर देखिए। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ राम भरत लड़ रहे हैं कि भैया हम नहीं गद्दी लेंगे, प्राप्त करेंगे। ये मेरा उदात्त चरित्र है। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। दैट्स वाई राम इज अनपैरेलल्ड पर्सनालिटी इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आज राम के ऊपर रिसर्च ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया में
अगर कोई भी थिंकर हुआ उसमें गांधी का नाम आता है। राम जो है गांधी के आदर्श है। राम इज एन आइडियल फिगर फॉर गांधी। हमेशा गांधी जो है वो राम से ही प्रेरणा लेते हैं, राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। एक जगह तुलसीदास ने लिखा भी है रामचरितमानस में, जब विभीषण और राम और रावण की सेना एक तरफ, विभीषण जो है वो अधीर हो जाता है। वो कहता है कि आप दो भाई धनुष बाण लिए हुए साधु भेष में एक तरफ खड़े हो और आपकी सेना में एक भी पर पुरुष नहीं है, ये कैसी सेना है? आप रावण से लड़ोगे? तो वहाँ राम क्या कहते हैं जरा देखिए। ये है चरित्र यहाँ के कल्चर और सिविलाइजेशन का। वो कहते हैं, जब वो कहते हैं कि सौरभ धीरज तेहि रथ चाका, असत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित छोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। इसमें ये इंडियन फिलॉसफी है। ये हमारे हीरोज हैं। वो क्या कहते हैं? शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील, शील से मतलब सदाचार से है, उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम, और दम क्या है? इंद्रियों को वश में करना कहते हैं। और उसके 4 घोड़े हैं, क्षमा, दया, समता। ये जो हैं 4 घोड़े बता रहे हैं। वो कंपैशन की बात, दया की बात करते हैं। होल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म दैट इज बेस्ड ऑन कंपैशन। whole philosophy of Jainism and Buddhism. If you just talk about Indian philosophy, compassion is the core thing. Compassion is the entity of truth also. हम जब ट्रुथ की बात करते हैं, ट्रुथ इतना आसान नहीं है ट्रुथ को डिफाइन करना। एक विद्यार्थी के लिए ट्रुथ क्या है? What is truth for a student? A student is to learn, is to gain knowledge. दिस इज द ट्रूथ। लेकिन एक टीचर के लिए क्या है? टीचर इज मेंट टू टीच, उसका ट्रूथ वही है। लेकिन आप कहेंगे कि सर प्रोफेशन को ट्रूथ से कैसे कोरिलेट आप कर रहे हो? तो एक चोर कहेगा चोरी करना मेरा धर्म है, मेरा सत्य वही है। नो। अब यहाँ मैं आता हूँ कि सत्य क्या है। वेद में, उपनिषद में, पुराण में, महाभारत में, रामायण में, हमारे जितने क्लासिकल टेक्स्ट हैं उसका कोर पॉइंट जो है वो ट्रुथ है। अब ट्रुथ क्या है? ट्रुथ इज मॉरली ऑब्लिगेटेड एंड वायबल जस्टिस। 2 चीज। अगर राइटियसनेस नहीं है हमारे एक्शन में तो ट्रुथ नहीं हो सकता। राइटियसनेस, व्हाट इज राइटियसनेस? अब राइटियसनेस के अंदर तमाम मॉरल वैल्यूज आ जाते हैं। हम कोई एक्शन लेते हैं, वी कांट अफेक्ट देम बैडली। इसलिए राम विवेक की बात करते हैं, क्योंकि विवेक जिसका मर गया तो वो आदमी गलत से गलत कार्य करेगा, वो क्रोध में आएगा, और क्रोध में आएगा तो उसका सर्वनाश होना तय है। कहते हैं कि सुनो विभीषण, मेरे पास विवेक है, धैर्य है। यू ऑल आर स्टूडेंट्स, इफ यू आर नॉट हैविंग पेशेंस यू कांट अचीव योर गोल ऑफ लाइफ। यू हैव टू कीप पेशेंस। पेशेंस इज द कोर पॉइंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ ए मैन। यहां पर अरविंदो भी, और फिर एक बात और प्रभु राम कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि अमल अचल मन त्रोण समाना, असम जम नियम शील मुख नाना, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही राम विजय उपाय न दूजा। देखिए मनुष्य के लाइफ में बहुत स्ट्रगल है,
So many layers of struggles in the man of life, in the life of man. आप देखिए ये क्या कहते हैं, अर्थ निर्मल, पाप रहित और अचल स्थिर मन तर्कस के समान है। सुनो, कहते हैं कि मेरे पास तर्कस क्या है? कहते हैं कि अर्थ निर्मल, परहित और पाप रहित हो और अचल स्थिर मन तर्कस के समान है। सम मन को बस में कर लेना, सम अहिंसा आदि नॉन वायलेंस की बात होती है। होल बुद्धिज्म फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन अहिंसा, नॉन वायलेंस। राम पहले ही कह चुके हैं, अहिंसा, यम और शौचादि नियम, ये बहुत से मेरे पास बाण हैं। कहते हैं कि यही वीपन है, दीज आर द वीपन्स थ्रू विच वी कैन फाइट, वी कैन बी एबल टू फाइट अगेंस्ट रावण। और कोई यहाँ अस्त्र की बात नहीं करते। कहते हैं ब्राह्मण गुरु का पूजन, अभेद्य कवच है मेरे पास, गुरु का पूजन। आजकल क्या हो रहा है? व्हाट इज द मॉरल सेंस दैट इज अपीयरिंग आफ्टर colonial periods? In the learning, in the faculty of learning, you can see disobedience. राम डिसोबीडियंस की बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि देखो मेरा ये कवच है, मुझे रोकेगा, तमाम व्याधियों से उसको रोक देगा ये, दिस इज माई आर्मर। एंड दूसरी बात कहते हैं, इसके समान विजय का कोई उपाय नहीं है। नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मीन्स थ्रू विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड एंड योरसेल्फ। एजुकेशन ही वो ताकत है। मैं तमाम विद्यार्थी बैठे हुए हैं, आज प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक बात होगी। थियोरेटिकल एस्पेक्ट को मैं टच नहीं कर रहा हूं, फिलॉसफी के तमाम सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका क्या है? सो मेनी स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स are of the opinion that philosophy is a serious subject. No. Philosophy is soul of all subjects. Philosophy is the soul of literature. Literature is body, but philosophy is the inherent quality. मैं तो इंग्लिश के छात्रों को कहता हूं अपने क्लास में, आप फिलॉसफी का क्लास जरूर अटेंड करो, भले ही तुम सब्जेक्ट नहीं लिए हो। क्यों? क्योंकि विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ फिलॉसफी यू कांट अंडरस्टैंड द लिटरेरी थियरीज, उसको समझ ही नहीं पाओगे आप। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, और आप विद्यार्थी बैठे हो, प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट क्या है एक फिलॉसफी का, उसको देखो अरविंदो से आप समझ सकते हैं। विवेकानंद तो सबसे बड़े प्रैग्मेटिक लगते हैं। विवेकानंद सेज नाइदर आइडियलिस्ट नॉर मेटलिस्ट आर राइट। वो कहते हैं कि आइडियलिस्ट और न मोर आइडियलिस्ट और मेटलिस्ट दोनों की बात कर रहे हैं, बिकॉज विवेकानंद इज द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया एट दैट टाइम, एंड ही वॉज ए मैन ऑफ साइंस, ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस। अपने गुरु से स्वामी रामतीर्थ परमहंस से पूछते थे, वेयर इज योर गॉड, कैन यू शो मी? तो रामतीर्थ परमहंस ने कहा कि गॉड तो तुम्हारे आसपास ही है। जब उस सुपर कॉन्शसनेस में ले गए, जिसकी कल चर्चा हो रही थी, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज भी थे सुपर कॉन्शसनेस को लेकर। सुप्रामेंटल जो अरविंदो का है, इतना आसान नहीं है उसको समझना। जब सुपर कॉन्शसनेस में ले गए विवेकानंद को और माँ देवी का दर्शन करा दिया, उसके बाद तो विवेकानंद का साइंस और टेक्नोलॉजी फेल कर गया। उन्होंने कहा कि नो, मैं इसी वर्ल्ड में अब रहूँगा, और स्पिरिचुअलिटी के बहुत बड़े क्रूसेडर बने इंडिया के। He became great crusader of spirituality. वो कहते हैं कि ज़्यादा आदर्शवादी भी मत बनो, neither idealist nor materialist are right. बहुत आदर्शवादी बन जाओगे in this world, in this changing world where materialism is now dominating our lifestyle. आप कहाँ गुरुकुल खोजोगे, कहाँ जाओगे? जंगल में पढ़ाई होगी? जंगल में पहले फॉरेस्ट में गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण लोग करते थे। इज इट पॉसिबल दिस टाइम? नो, क्योंकि दिस इज द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज कंप्लीटली
changed our lifestyle, thinking, way of life, all these things are very much dominated. तो कहते हैं विवेकानंद, देखिए उसका भी समाधान निकालते हैं, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बनो, ना बहुत ज़्यादा भौतिकवादी बनो। ज़्यादा भौतिकवादी बनोगे धन के चक्कर में तो बर्बाद हो जाओगे। डिकेंस ने क्या कहा था? मनी करप्ट्स मैन, उसने भी इशारा किया था। ये जो मनी माइंडेडनेस, दैट इज क्रिएटिंग करप्शन इन द सोसाइटी। टू मच मनी इज हैवी ऑन द माइंड ऑफ पीपल, और यही आपको करप्शन की तरफ ले जाएगा। वो कहते हैं नो मोर मेटेरियलिज्म, नो मोर दिस ईगोइज्म। ही इज नाउ रेफरिंग टू ईगोइज्म। वो कहते हैं कि आप ईगोइज्म मत पाल लीजिए। मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूं, मैं समझूं कि इस जगह पर आ गया, मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हो गया। नो, आप में बहुत बड़े स्कॉलर बनने की पॉसिबिलिटी है, उसकी तरफ इशारा करते हैं। ईगोइज्म की तरफ भी मत जाइए। आई मस्ट बिकम स्पिरिचुअल। एंड व्हाट ही सेज अबाउट स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी इज अ वे ऑफ लाइफ। Spirituality is not religious practices. Religion may be the means through which you can attain spirituality, but spirituality is not religion. यहीं पर अंतर हो जाता है। बहुत सारे अपोजिशन के नेता भी इस बात को गलत वे में लेने लगते हैं। जब कोई स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, आप तो रिलीजियस हो। नो, मैं तो मार्क्सिस्ट हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं लेफ्टिस्ट हूँ। ये जो विंग चला है ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है। हमारे यहाँ एग्जिस्टेंशलिज्म की बात नहीं है। अगर कोई कहता है कि इंडियन फिलॉसफी, इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन में एग्जिस्टेंशियलिज्म है, नो। हमारे यहाँ तो ब्लिस की बात करते हैं अरबिंदो, आनंद की बात करते हैं। उस आनंद की जो आनंद कॉमन मैन के ऊपर है, हम आनंद की बात करते हैं। हम एग्जिस्टेंशियल, क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी इज नॉट हियर। हमारे यहाँ जीवन उत्सव है, यहां तक कि काशी में मृत्यु भी उत्सव है। मृत्यु को हम न एंड ऑफ लाइफ समझते हैं। यहां तो कृष्ण कहते हैं सोल इज ट्रांसमाइग्रेटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो फिर चिंता किस बात की? मृत्यु की चिंता क्यों? वहां मृत्यु की चिंता है क्योंकि आफ्टर colonial period and in the time of colonial period also, there were so many changes due to industrialization. In the West, industrialization completely, just with the bombardment on Europe in the period of World War, the sense of man is lost. The people's thinking, because there was unemployment. So many factories were bombarded at that time. And due to this, people lost employment. And due to this, depression emerged there. हमारे यहाँ डिप्रेशन नहीं होता। इंडियन कल्चर में, इंडियन फिलॉसफी में डिप्रेशन के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ आनंद से परिपूर्ण है। जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, गॉड ने चाहा। और अगर मैं फेल कर गया एग्जाम में तो गॉड ने नहीं चाहा, फेल कर गया, ये भी संतोष कर लेते। देखिए एक मैं दृष्टांत बता रहा हूं। एक अमेरिकन आया था पीटर बियॉन्ड हिंदू एंड मुस्लिम, एक किताब लिखा है जो आपके उसमें है भी साइट पर। वो अमेरिका में यहाँ अमेरिका से आया और स्टे किया था यहाँ दुर्गा कुंड में, वाराणसी में। और वो खोज रहा था कि कहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी रहती हो। और इंडियन रूरल कल्चर उसका मेन पॉइंट था जिस पर वो कुछ करना चाह रहा था। हमारे यहाँ गया गांव में, और मैं एक ट्रांसलेटर के रूप में उसको मिल गया। बड़ा खुश हुआ कि मुझे तो हिंदी थोड़ी बहुत आती है। एक जेएनयू के सर थे, दुर्गा कुंड में लैंग्वेज पढ़ाते थे, तो थोड़ी बहुत हिंदी बता देते थे उन लोगों को रिसर्च करने के लिए। हमने कहा कि पीटर साहब, आपने रिसर्च किया इंडिया के बारे में, 1.5 साल हमारे यहाँ रहे, व्हाट्स योर फाइंडिंग अबाउट इंडियन वे ऑफ लाइफ? पीटर ने कहा, इन इंडिया पॉवर्टी इज मच, गरीबी है, इलिटरेसी, यहाँ इलिटरेसी भी है,
बट पीपल आर हॉस्पिटेबल। उसने कहा कि मैंने कई देशों का दौरा किया, इतना बड़ा आतिथ्य मुझे नहीं मिला। हमने कहा कि चलिए कुछ तो सुकून की बात आ गई। पीटर ने दूसरी बात कहा, यहाँ गरीबी इतनी है कि एक बार्बर जो है $1 ही अर्न्स अ डे, $1 कमाता है, लेकिन वो खुश रहता है। हमारे यहाँ $1 कमाने वाला तो सुसाइड कर लेगा। हमारे यहाँ सुसाइड नहीं है, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं। हमने कहा देखिए वो इसलिए खुश है कि मैटेरियलिज्म में नहीं फंसा है। आप फंसा दीजिएगा जिस दिन मैटेरियलिज्म में, उसकी खुशी गायब हो जाएगी। हमारे यहाँ वो $1 कमाता है तो मान के चलता है कि ईश्वर की देन है कि मैं $1 कमा लिया आज, छोड़िए रोटी कपड़ा और मकान ये चल गया मेरा। कहा कि $1 कमाने वाला हाउ कैन ही सर्वाइव। हमने कहा कि उसका भी उदाहरण देख लीजिए। हमारे यहाँ $1 में बाटी चोखा लग जाता, और एक परिवार जो है $1 में आटा खरीद करके और बाटी चोखा लगाकर जी लेगा। ये जो सर्वाइवल है, हमारे यहाँ सर्वाइवल के लिए लड़ाई नहीं है कि डिप्रेशन में हम चले जाएं। जितने मार्क्सिस्ट फिलोसफर्स हैं उन्होंने, या डिटर्मिनिस्टिक फिलॉसफी जो आई, इस सारे लोगों ने ऐसा क्योटिक वर्ल्ड बना दिया जिससे हम अपनी ही फिलॉसफी को भूल गए, अपने इंडियन वे ऑफ लाइफ को भूल गए। उनके यहाँ इंडिविजुअलिज्म इज द कोर पॉइंट। हर आदमी को स्वतंत्रता चाहिए। हमारे यहाँ स्वतंत्रता, एक परिवार है क्या स्वतंत्र आप नहीं है? एक सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है। दिस इज द कल्चर ऑफ इंडिया, दिस इज द वे ऑफ लाइफ वी शुड अडॉप्ट। और आज दुनिया किसके लिए? रूस इज ट्राइंग टू ऑक्युपाई यूक्रेन। अभी आप रिसेंट में देखे होंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इस बात को माना कि मोदी के चलते रूस में परमाणु बम रुक गया। ये 10 दिन की खबर है। अमेरिकन थिंकर ने कहा कि बहुत बड़ा काम मोदी जी ने कर दिया, नहीं तो रूस जा रहा था परमाणु बम गिराने। सेकेंड एटॉमिक बम बम्बार्डमेंट होता वर्ल्ड में। दिस इज द लाइफ। इंडिया कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, कभी भी दूसरे देश को ऑक्युपाई नहीं किया। ये मेरा दर्शन है, ये मेरा जीवन दर्शन है। दिस द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। सो मेनी थिंग्स आर हियर एंड सर इज सिग्नलिंग मी टू स्टॉप। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir.